friends, I'm Arpita Karwa, and in this video lecture I'm going to talk about the new online exam pattern of UGC NET exam. So we all know that earlier the exam was conducted offline. That means you were given a OMR sheet in which you had to fill your responses, and it was a pen paper test. But recently a change was made and now the exam is going to be conducted online. And I know that because the exam is conducted online, there are a lot of students who are extremely nervous. I was looking at the comment section of my YouTube channel and I was amazed to see that almost every other student is asking me to make a video on this online pattern. So I thought of making a video in which I'm going to clear all your doubts, because there are a lot of students जिनके दिमाग में ये constant सवाल है कि online pattern कैसा होगा, हम screen पे responses कैसे mark करेंगे, अगर मुझे कोई answer change करना है तो वो कैसे होगा, screen पे क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, किन buttons को use करना है, अगर मेरे से गलती से कोई button दब गया तो ऐसा ना हो कि submit हो जाए paper और मैंने answers mark नहीं करे हो, अगर मुझे कोई response बदलना है तो वो कैसा होगा. So there are a lot of questions which are there in your head, and in this video I'm going to answer each and every question of yours. So it's important that you watch this video till the end. Also, I would like to mention that we are going to have a step-by-step approach, and in this step-by-step manner I'm going to clear all your doubts and I'm going to acquaint you to the main instructions, main symbols, main things that you're going to see on your computer screen on the day of the exam. So before we move ahead and talk about the step-by-step approach of attempting the UGC NET online exam, you must get your basics right. So let's first understand a few basic points about the NTA UGC NET exam. The first important thing that you must remember is that from now onwards, the exam, the UGC NET exam, is going to be conducted by a new testing agency, which is NTA, National Testing Agency. The paper pattern and the syllabus still remains the same. So we'll be having two papers, paper 1 and 2. Both the papers are going to be conducted on the same day. The timing is mentioned in your admit card or your exam hall ticket, so you can check that. You should also remember that in paper 1 you are going to get 50 questions, whereas in paper 2 you are going to get 100 questions. Okay. All the questions are going to be of 2 marks and there is no negative marking. So that's the biggest boon for NET aspirants, because there is no negative marking. You are free to answer the questions without thinking that, okay, maybe the marks would be deductive if I answer it incorrectly. Apart from that, you should also remember that the paper is going to be online. Now, there are a lot of students who are worried about this new pattern. They say that we are not computer friendly. We've never given an online paper. So is it going to be difficult? I'm telling you guys, from my past experience, I've given a lot of online exams. Online exams are way better than the pen paper test. Why? Simply because, number one, it is going to save a lot of your time. You remember in my previous videos, I've mentioned it continuously that please, before the time ends, you need to keep 15 minutes for marking the OMR sheet, marking your answers in the OMR sheet. In an online exam, you don't need to worry about marking in OMR sheet. Also, you must remember that the mistakes that sometimes students make while they are marking in the OMR sheet is not there in the online exam, because whatever you're marking, it's there in front of you. You cannot answer 2 and mark 3 on the OMR sheet. So this mistakes that students make is not going to be there in any online exam. Also understand that every online exam is very simple. It's very user friendly, just like our mobile phones. We never hesitate to open a new app in our mobile phone, because we know that there are a lot of things that are going to assist us in the functioning of the app. So we are going to understand a lot of things while looking at the screen itself. All the options are given clearly on the screen. The same thing is there in any online exam. Everything that you need is in front of your screen.
screen. So you don't need to worry, okay, how to do this. It's there in front of you. You just need to click a button and the things would be sorted. So from my side, I would suggest you not to worry about the online setup because it's way easier and way better than the pen paper OMR test. Now that we have known the basics, it's time to look at the online setup. हमारी कन्वीनियंस के लिए एनटीए ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अपलोड करे हैं एंड जिस फॉर्मेट में मॉक टेस्ट है वी आर अज्यूमिंग कि हमारा पेपर भी उसी फॉर्मेट में आएगा. सो आज इस पूरे वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू दिस एंटायर मॉक टेस्ट सेशन एंड साथ ही साथ हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से हमें ऑनलाइन एग्जाम देना है. देखिए, फर्स्ट स्टेप है लॉगिन में अपना डिटेल्स भरना. नाउ इसमें तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है, बट एग्जाम वाले दिन वी अज्यूम कि आपसे जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करने को बोला जाएगा. तो आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी क्रेडेंशियल्स पूछे जाते हैं वो आपको फिल करने हैं और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है. तो आप देखेंगे कि उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे पेज पे which is general instructions. So step 1 was filling the credential. Step 2 is reading general instructions. Now जनरल इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज आई डोंट वांट कि आप इंस्ट्रक्शंस की वजह से मार्क्स लूज कर जाए. तो एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़िए. अभी कहीं टाइमर नहीं चल रहा है तो आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है. आप चाहें तो आप लैंग्वेज भी बदल के हिंदी कर सकते हैं अगर आप हिंदी में कन्वीनियंट है. उसके बाद आप एक चीज देख पाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए हैं. ये सिंबल समझ कर ही आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. इन सिंबल्स के बारे में मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगी, बट फॉर नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शंस के सिंबल्स हैं ये बहुत क्रूशियल है आपके पेपर के लिए. पूरा क्वेश्चन के जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उससे पढ़ने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन दिस टिक मार्क व्हिच सेज आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन और उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे. इसके साथ आपने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं. फर्स्ट स्टेप वाज आपको अपने क्रेडेंशियल्स भरने हैं एंड सेकेंड स्टेप इज रीडिंग द जनरल इंस्ट्रक्शन एंड क्लिकिंग ऑन द चेक मार्क्स आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन. नाउ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज द स्टेप 3. सो दिस इज द पेज जो आपके सामने 1 घंटे तक रहेगा. इस पेज के जितने कंपोनेंट्स है उसको जानना बहुत जरूरी है. सबसे पहले आप देखेंगे टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे आपका फोटोग्राफ आपको दिखेगा, नेम दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा एंड टाइम रिमेनिंग दिखेगा. सो आपका टाइमर यहाँ पे चल रहा है. ठीक उसी के नीचे आपको वापस से वही सिंबल्स दिख रहे हैं जो आपने इंस्ट्रक्शन सेक्शन में देखे थे एंड इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पैनल दिख रहा है जिसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको नंबर वाइज डिस्प्ले हो रहे हैं. अगर आप इस सेक्शन में देखें यहाँ पे तो आपको एक एक क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन के नीचे आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं. आप जिस भी बुलेट पे क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. ये सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, देन सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन है, क्लियर रिस्पॉन्स ऑप्शन है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ऑप्शन है. इसके अलावा बैक एंड नेक्स्ट ऑप्शन है और एक सबमिट का ऑप्शन है. तो ये ऑप्शंस पता होने बहुत जरूरी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन 1 आपने पढ़ा, उसके आपको अगर आंसर आता है, सपोज उसका आंसर 3 है तो आपने 3 मार्क किया. इसे मार्क करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट. जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीन हो गया है. दैट मीन्स जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसे आंसर्ड मान लिया जाता है और इस पैनल में उसका जो सिंबल है उसका कलर हो जाता है ग्रीन. नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शंस है उसमें आप कंफ्यूज हैं. आपको लगता है या तो 1 है या 2 है, बट आप 2 के लिए ज्यादा श्योर है. स्टिल यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस आंसर. आपको लगता है कि हो सकता है आप बाद में चेंज करें. तो 2 पे क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है विच सेज सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू. इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये आंसर जो आपने अभी अभी आंसर किया है 2, वो चीज मान ली जाएगी कि अगर आपने उसे चेंज नहीं किया सबमिट पे क्लिक करने से पहले तो इसे एग्जामिनर एज अ करेक्ट ऑप्शन ले लेगा. ओके, बट ये ब्लू में या पर्पल में इसलिए है जिससे आप पूरे क्वेश्चंस करने के बाद वापस इस क्वेश्चन पे आके एक बार फिर से इसे अपने हिसाब से करेक्टली आंसर कर पाए. ओके, सो
answered and marked for review, this will be considered for evaluation. अगर आप save and mark for review करते हैं, that means आपने जो आंसर मार्क किया है वो आंसर इवेल्युएट होगा. ओके, नाउ सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा और इसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं है और आप इसे बाद में करना चाहते हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन विच सेज मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. ये मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा. दैट मीन्स इसमें ग्रीन साइन नहीं है. वाई? बिकॉज इसमें आपने कोई ऑप्शन नहीं भरा है. इसमें आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को लिख दिया है कि ये क्वेश्चन बाद में आप एक बार चेक करना चाहेंगे या वापस से अटेम्प्ट करना चाहेंगे. तो ये 3 ऑप्शंस आपको मैंने बताए. अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा. आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो ब्लू हो जाएगा विथ अ ग्रीन डॉट. दैट मीन्स इस क्वेश्चन का अगर आपने वापस आंसर नहीं दिया तो इसी आंसर को सही मान लिया जाएगा. दैट मीन्स इसी आंसर को एज अ रिस्पॉन्स मान के इवेल्युएट किया जाएगा. एंड एक ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. दैट मीन्स इस आंसर पे आप बाद में वापस आना चाहेंगे और फिर इसे अटेम्प्ट करना चाहेंगे. और इसके अलावा ये 2 ऑप्शंस आपको और दिख रहे हैं, नेक्स्ट एंड बैक. नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो आपका रेड हो जाता है. ओके, रेड मीन्स नॉट आंसर्ड, आपने आंसर नहीं किया है. एंड व्हाइट मीन्स नॉट विजिटेड. ये बाकी सारे क्वेश्चन व्हाइट है बिकॉज अभी तक आपने इनको पढ़ा नहीं है. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ के आगे निकल जाती हूँ तो ये नॉट आंसर्ड माना जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि इन बटन्स में आप जो जो ऑप्शंस चूज करेंगे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स चेंज होते हैं और उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं और किन क्वेश्चंस को आपको वापस से रीचेक करना है या फिर रिव्यू करना है. एक और ऑप्शन इसमें है क्लियर रिस्पॉन्स. सपोज मैंने 4 को मार्क किया और मुझे लगता है 4 सही नहीं है, 3 सही है. ओके, तो मैं यहां से भी शिफ्ट कर सकती हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ से क्लियर रिस्पॉन्स कर सकती हूँ. तो क्लियर रिस्पॉन्स करके मैं इसे नेक्स्ट पे जा सकती हूँ. दैट मीन्स मैंने इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट नहीं करा है. तो क्लियर रिस्पॉन्स से आपने जिस भी एमसीक्यू के बटन पे क्लिक किया है या जिसे मार्क किया है वो हट जाएगा. तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं. और वंस यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, आप चाहें तो आप वापस उस क्वेश्चन पे आके उसे उनके रिस्पॉन्सेस चेंज करके आप आगे बढ़ सकती हैं. ओके, वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस यू कैन क्लिक ऑन सबमिट बटन. सबमिट पे क्लिक करते ही आपका टेस्ट एंड हो जाएगा. दैट मीन्स ये माना जाएगा कि आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है. आपके सामने सारे ऑप्शंस जो आपकी समरी है वो दिखा दी जाएगी. आपसे वापस पूछा जाएगा कि क्या आप सेव करके फाइनल मार्किंग के लिए भेजना चाहते हैं या नहीं. अगर नहीं तो आप नो पे क्लिक करें, आप वापस से अपने पेपर पे आ जाएंगे. अगर आप यस पे क्लिक कर देते हैं तो आप नेक्स्ट विंडो पे रीडायरेक्ट होंगे जहां पे बोला जाएगा कि आपके रिस्पॉन्सेस को फाइनल मार्किंग के लिए भेज दिया है. आप ओके पे क्लिक करिए, आपका रिजल्ट सबमिट हो जाएगा एंड देन यू कैन सी योर रिजल्ट. फाइनली रिजल्ट आपके सामने है एंड रिजल्ट के बाद में जो कट ऑफ है वो एनटीए की तरफ से कुछ दिन बाद बताई जाएगी. अगर आपका परसेंटेज उस कट ऑफ से ज्यादा है दैट मीन्स यू हैव क्लियर्ड नेट. अगर आपका परसेंटेज उस कट ऑफ से कम है दैट मीन्स यू स्टिल हैव टू सिट अगेन फॉर द एग्जाम एंड क्लियर इट. So with that note, I would like to take your leave. I've tried to talk about the entire online setup in this video and I'm telling you guys, you don't need to worry about anything. सब कुछ आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा और आप तब तक करेक्शन कर सकते हैं जब तक आप सबमिट पे क्लिक नहीं कर देते. जब तक आपने सबमिट पे क्लिक नहीं किया है, अगर आपने कोई एरर भी कर दिया है तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. ऑनलाइन एग्जाम बनाया ही स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए जाता है. सो डोंट एवर think that this exam is going to be a tough one for you. Also, I would like to tell you that if you like this video, then please give it a big fan thumbs up. You can also share this video with other NET aspirants because sharing is caring. Subscribe to this channel because I post videos every week for UGC NET aspirants in order to boost their exam preparation. You can also follow me on the social media platforms. The links of the same are given in the description box below. If you wish to join online course for UGC NET English Literature, you can go to my website arpitakarwa.com and find all the details there. So that's it for this video lecture. We'll meet soon in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com.